Good morning class 8. Today we are going to start the next part of explanation of the chapter fire buckets. So we have already come to know that there was a curiosity in the town as Edward Handlin was coming to visit the town. Now I'll start with the last paragraph of page number 40. The houses were small, even that of the political officer who had a princely four-roomed mansion. Underline the word mansion. Mansion means a big bungalow or building. But his garden was the largest. Most people did not understand why the houses should be small, for there was enough space here to build places. Each one had a little garden, some tended jealously. Underline the word tended. Tended means taken care. Jealously. Underline the word jealously. Jealously means jalan hona. Some running wild. The tribes that live beyond the hillock and across the river did not count. Tribe means people who live in jungles. आदिवासी जिन्हें आप कहते हो. Only anthropologists considered them people. The others looked upon them as sources of their jobs, creatures who speak gibberish, underline the word gibberish, except the two who had been employed by the hospital to pull the thick cloth pankha, underline the word pankha, that hung from the ceiling. So, the narrator or the author is saying that the houses were small. There were total 11 houses and they were not very big. Even that of the political officer. Now he is comparing that the highest man in the town was political officer and his house was also not very big. Only 4 rooms were there. Princely 4-roomed mansion means in other houses there were not more than 1 or 2 rooms, but political officer's house was the largest where there were 4 rooms, and princely means as compared to other rooms they were big. But his garden was the largest, and the bungalow of political officer had the biggest garden. Most people did not understand why the houses should be small, for there was enough space here to build palaces. अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि पता नहीं क्यों सरकार ने घर छोटे छोटे बनाए, जबकि इतनी जगह में और इतनी गार्डन स्पेस में तो शायद पैलेस बन जाए, महल बन जाए. ईच वन हैड अ लिटिल गार्डन. हर एक घर में छोटा गार्डन था. सम टेंडेड जेलसली, सम रनिंग वाइल्ड. कुछ लोग दूसरों के गार्डन को देख के जलन के मारे अपने गार्डन की केयर करते थे, और कुछ लोगों को अपने गार्डन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. वहां जंगली घास, पेड़ पौधे उगे हुए थे. द ट्राइब्स दैट लिव बियॉन्ड द हिलॉक एंड अक्रॉस द रिवर डिड नॉट काउंट. और लोहित नदी के दूसरी तरफ एक आदिवासी जाति रहती थी जिसे उस टाउन के लोग इंसान या अपनी गिनती में नहीं लाते थे. वो मानते ही नहीं थे कि ये लोग भी इंसान होते हैं. ओनली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर्ड दैम पीपल. और वो ट्राइबल पीपल किसके लिए इम्पॉर्टेंट थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, जैसे कि एडवर्ड हैंडलिन के लिए. द अदर्स लुक्ड अपॉन देम एज सोर्सेज ऑफ देयर जॉब्स, क्रिएचर्स हु स्पीक गिब्रिश. और बाकी जो लोग टाउन में रहते थे वो उस ट्राइब के लोगों को क्या समझते थे? सिर्फ अपना काम करवाने का जरिया, या ऐसे क्रिएचर, ऐसे इंसान जो गिब्रिश लैंग्वेज बोलते हैं, नॉनसेंस, क्योंकि ट्राइबल लोगों की लैंग्वेज हम लोगों से डिफरेंट होती है. Except the two who had been employed by the hospital to pull the thick cloth पंखा. उस पूरी ट्राइब में से सिर्फ पूरे टाउन के लोग उन 2 आदिवासियों से बात करते थे जिन्हें हॉस्पिटल में नौकरी के लिए रखा था. और वो क्या काम था कि थिक क्लोथ पंखा. पहले के ज़माने में पंखे ऐसे नहीं होते थे. एक लंबी सी लकड़ी के ऊपर बहुत सारी फ्रिल वाला, झालर वाला कपड़ा लटका दिया जाता था और एक रस्सी बांध दी जाती थी. फिर एक आदमी को दिन भर उस रस्सी को, जैसे बच्चे को अपन झूला देते हैं, उस रस्सी को खींचना पड़ता था, और उस कपड़े की फ्रिल से या झालर से जो हवा आती थी वो ठंडक देती थी. तो हॉस्पिटल में इस टाइप का पंखा लगा हुआ था, और हॉस्पिटल के लोगों ने 2 ट्राइबल लोगों को उस पंखे को हिलाने के काम के लिए रख रखा था.
It was a boat community and was and always on the lookout for excitement. Even the arrival of tins of fresh biscuits in the Sate's shop was a news to be chewed over. Underline the word chewed. The news of Edward Hanlon's arrival was a whole new ball game though. Everybody had heard of him, the anthropologist with an adventurer's soul who preferred the tent put up in a thicket, underline the word thicket, to the dog bungalow. He knew many of the languages the tribe spoke. He lived and danced with them and wrote down everything in his notebooks. The governor invited him to dinner and gave him his jeep and talked to army officers on the wireless to tell them to make Edward's life a little easy. They, they did. They gave him the most capacious, underline the word capacious, tent and cooked for him. Now, शुरू के 2 पेज में ऑथर ने हमें सिर्फ ये बताया है कि डिब्रू कैसा टाउन था, कैसे लोग थे, सब कुछ. उसके बावजूद भी ऑथर क्या कह रहा है कि इट वॉज अ बोर्ड कम्युनिटी, और क्योंकि इतने कम वो लोग वहाँ रहते थे कि वो जल्दी ही किसी भी चीज़ से बोर हो जाते थे, उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, इसीलिए डिब्रू में छोटी से छोटी होने वाली चीज़ भी लोग जानने को एक्साइटेड रहते थे. इतने एक्साइटेड कि अगर सेठ की दुकान पर फ्रेश बिस्किट्स का एक टिन, एक बास्केट भी आया है, तो वो न्यूज भी पूरे गांव में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाई जाती थी. चूड ओवर मीन्स बिल्कुल एक चीज का कस निकाल देना, क्योंकि उनकी लाइफ में और कोई एक्साइटमेंट था ही नहीं. सेठ जी की दुकान पे नए बिस्किट आए, नए बिस्किट आए, ये तब तक चलता रहता था जब तक कि गांव के हर एक आदमी को पता ना पड़ जाए कि क्या हुआ है. ऐसे ही एडवर्ड हैंडलिंग की न्यूज भी एक एक्साइटमेंट लेकर आई, क्योंकि सबने एडवर्ड हैंडलिन के बारे में सुन रखा था कि वो सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही नहीं था, उसे एडवेंचर भी पसंद था है. एंड ही प्रिफर्ड द टेंट टू बी पुट अप इन अ थिकेट. वो डाक बंगलों में रहने की जगह टेंट में रहना पसंद करता था. वॉट इज अ थिकेट? अ ग्रुप ऑफ बुशेस और स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर. अंडरलाइन द वर्ड थिकेट. ही न्यू मैनी ऑन. सबसे बड़ी चीज ये कि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी जो ट्राइबल पीपल बोलते थे, और शायद इन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से गवर्नर ने उसको अपने साथ इनवाइट किया, खाना खिलाया, डिनर खिलाया, अपनी जीप दी, और आर्मी ऑफिसर्स से वायरलेस पे बात करके ये बोला कि जब एडवर्ड आपके टाउन आएगा तो उसकी लाइफ इजी बनाने, मतलब उसे हर तरीके की फैसिलिटी दी जाए. इसीलिए उन्होंने अपना सबसे कैपेशियस, अंडरलाइन वर्ड कैपेशियस, बड़ा टेंट उसको दिया, और तो और उसके लिए खाना भी पकाया. ओके, राइट डाउन वर्ड मीनिंग्स एंड द अंडरलाइन वर्ड्स.